السلام علیکم۔ اجمل رضا قادری کی مزید ویڈیو کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسی نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے اب وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغربی شاپ پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے، یہ کیا بات؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئے بائے شائع کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی، فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ اب فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا۔ اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں، تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔
और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होके बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था, दुनियादारी करता था, बड़ा माल, बड़ी जायदादें, बड़ा डेरा, बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए। कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था, तो हर चीज जाया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई ना, वो कभी मस्जिद ही आया था, बनी इस्राइल का शख्स था, तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, और उसके बाद कहने लगे कि तो भिखारी हो गया है। भिखारी, वो तेरी आंख या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, हुन वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा गुद्दा मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, अल्लाह मैंने दुनिया देख लिया सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फिर मैं इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही कर दो, जो कहता है वैसे ही, जो वटिया शाना वाले मौला ते रब गरीब नवाजा, अपने बंदे अताई खुली रखी रहमत दा दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमा को मैं जाओ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस की है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता। फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। जाएगा तो वापस है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते हैं बनी इसराइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे गिराने, वही दोस्तियां, वही सारे मामलात, उलझ गया, फिर वही कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख टेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है कि पिछली दफा मैंने दुआ की थी तो किया मैंने फराड ही था कि पक्की तौबा की, अंदर चोर है तो बहन फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई थे चोर अंदर था, अंदर खटका है कि यार मैं, लेकिन कहने लगा जाऊं ना तो जाऊं किधर। फिर आ गया मस्सो, कहने लगा या अल्लाह आज के बाद नहीं करता, आज के बाद गलती तू मेहरबानी फरमा, एक दफा नजर फरमा। मेरे हबीबे पाक बयान कर रहे हैं तो आंखों में आंसू है। हुजूर फरमाते, कहने लगे या अल्लाह एक दफा आप नहीं करता। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों दे दो जो मांगता है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह डर के नहीं आया, उलझ के आया है। फरमाया मुझे तो ये भी पता है कि दोबारा आएगा भी नहीं,
लेकिन अब वो आ गया है, दे दो जो मांगता है। हुजूर फरमाते हैं 70 दफा आया। बोले कितनी दफा? और भाई चौथी बारी देबा जी नहीं पैसे पा के दे दुकान वो अंदर तू झाड़दा खसमा का सिर खा दूजे नहीं करके देना। 2-3 दफा डाल के देते हैं तिजारत कारोबार, चौथी दफा कहते मौज कर भाई, तू ज़ाया कर देता है, तुझे नहीं देने। 70 दफा आया, 70 दफा। खुदा के पसंदीदा बनो, लोगों के पसंदीदा ना बनो। इनकी तो पसंद में 3 दफा पूरे नहीं उतरोगे तुम्हें धुतकार देंगे, जूते की नोक पे नहीं रखेंगे। 70 दफा आया, 70 दफा ना पसंदीदगी का काम किया। एक दिन फिर रात को उठा, अब उलझा नहीं, अब माल है, दौलत है। रात को उठ गया, उठ के बैठ गया, दिल में ख्याल आया मैं कितना बुरा हूं। खुदा के दरवाजे पे तब जाता हूं जब फंस जाता हूं, उसके आस्थाने पे तब जाता हूं जब उलझ जाता हूं, उस वक्त जाता हूं जब बीमार हो जाता हूं, उस वक्त जाता हूं जब तवीज की जरूरत होती है, दुआ की आदत होती है। कितना खुद गर्ज हूं, खुदा को भी सजदे करता हूं। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां, आमद फराज ने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते। मैं कहां बस रहा हूं कि यहां भी मेरा लालच ही है। उठा, फिर तड़पा, मुसल्ला बिछाया तो मुसल्ला आंसुओं से भीग गया। कहने लगा खुदाया तू अजीम है, मैं जलील हूं, तू बड़ा है, मैं आजिज हूं, तेरी क्या बात है, मैं कुछ भी नहीं। खुदाया 70 दफा तौबा की और झूठी की, तेरा कितना बड़ा हौसला है, तूने हर दफा मेरी कबूल फरमाई। खुदाया आज मैं लालच लेके नहीं आया, मैं तुझे राजी करने आया हूं। आज मैं तुझे राजी करने आया हूं, सच्चा होके आया हूं। मेरे महबूब फरमाते रब ने फरमाया फरिश्तों खोलो नजर आसमान के दरवाजे। तुम कहते थे उलझ के आया, फंस के आया, खोलो आसमान के दरवाजे, वो देखो सजदे में गिरा हुआ है। ये आज उलझ के नहीं आया, ये आज मुझसे डर के आगे आई, आज मेरे प्यार में आ गया है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह पहले तुम माल देता था, हम क्या देगा? तो मेरे भी फरमाते रब फरमाते मैं इसे दुनिया में इज्जत दूंगा और कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा दो। मेरे दोस्त छोड़ दुनिया की पसंदीदा, रोज नया रंग इख्तियार करना, बंदे मुझे पसंद करे, रोज नया स्टाइल इख्तियार करना लोगों की। अब ये रिवाज आ गया, अब ये रिवाज आ गया, अब ये चक्कर चल गया है। नहीं जी नहीं, अब मेरी हवेली बची बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है और सारे मैरिज हालों में शादियां करते हैं। मेरे दुनिया छोड़, दुनिया कभी कभी कुछ पसंदीदा बना है, तुझसे एक मकर कराते हैं, फिर कहते हैं दूसरा भी कर, फिर कहते हैं तीसरा भी कर। ये तो तुझे मकर करा करा के थका दे, नचा नचा के थका दे। ये दुनिया तेरा इम्तिहान लेगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ये तो तुझे रुसवा कर देगी, उलझा देगी। अर्श का मालिक है जो इम्तिहान नहीं लेता, वो कहता है तू एक बार आ जा सही, तू आ जा सही। मेरे अभी फरमाते हैं तेरा काम पहुंच जाना है और फिर रब का काम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देना। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़े वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी। मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई।
जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे, वेखे गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, हमें वेखे या ना वेखे। अब फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब कहा बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं? फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तनहा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घुड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माज़अल्लाह, ये नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सारे सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ए अल्लाह मेरा ईमान इतना मशकूक, काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहाँ लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, शहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे, बे नूर बे चराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद न किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊंघ आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है, वरना मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था,
इसका मामला हल नहीं हुआ, अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा? दे दो जो मांगता है, दे दो। मेरे दोस्त, घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अद में मार्फत गफलत पैदा करती है, तू आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबियां हैं। अय्याम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब जुनैरा अल्लाह पे भरोसा, तवक्कुल, मार्फत इलाही का जज्बा, उठ के खड़ी हो कहने लगी, चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं, मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी थी। तुझे पता चल जाना वो मेहरबान कितना है। वो एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के जिम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब ले तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला है। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाजा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज कोशिश करे कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करे। और फिर 8वीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में न बैठे, उनकी सोबत में बैठे, इनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती। गाफिलों से बचे। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पए, तो जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर दे। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अलमरउ अला दीन खलीलही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हज़रत मुजद्दद अल फैसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हज़रत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से, कभी मेहरे अली से, हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बालगल उला बे कमाली, कशफत दुजा बे जमाली, हसनत जमी ओ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते आज सिख मित्रां दी वधेरी है, आज सिख मित्रां दी, सिख कहते हैं उडीक को, मित्र कहते हैं महबूब को। आज सिख मित्रां दी वधेरी है, ए क्यों दिल दी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है जिन उदास हो, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का, और किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी, किथे जाड़ियां
बलगल उलाबे कमा कशफत दुजाबे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में, खबरदार उनके पास ना बैठना, जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह, अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास ना बैठना, जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तो हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है, हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा।